तो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे थे और अभी हम जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और हम पढ़ रहे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 17। यहीं से पढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है असर्शन ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, जो कि बिल्कुल सही है। रीज़न आर दिया हुआ है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैव बीन एग्रावेटेड ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ये भी क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट वाइज तो ठीक हैं, लेकिन जो आर है वो असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया was a period when agriculture in India resulted in the growth of food grain production. The adoption of new agricultural technology, high yielding variety of seeds, plant breeding, irrigation, etc. increased the production of food grain. Thus, assertion A is correct. Green revolution spread only in irrigated and high potential rain fed areas. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो कहाँ कहाँ फैला, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्प्रेड ओनली इन irrigated and high potential rain fed areas. The villages or regions without the access to sufficient water were left out. The villages or regions without the access of sufficient water were left out. Thus it led to regional disparities. Thus the reason R is the correct, but R is not the correct explanation of assertion. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रेनबो रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड विद, तो इसका आंसर हो जाएगा रेनबो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा, रेनबो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड है वाइट रिवॉल्यूशन, थर्ड है ब्लू रिवॉल्यूशन। जो रेनबो रिवॉल्यूशन है ये इन सभी से रिलेटेड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, on 28 July 2000 the new national agricultural policy was announced by the central government. In this policy the concept of rainbow revolution was introduced. The various colors of the rainbow revolution indicate various farms practices such as green revolution for food grains, white revolution for milk, yellow revolution for oil seeds, blue revolution for fisheries, red revolution for tomatoes, golden revolutions for fruits, grey revolution for fertilizers and so on. ठीक है, thus the concept of rainbow revolution is an integrated development of crop cultivation, horticulture, forestry, fishery, poultry, animal husbandry and food processing इंडस्ट्री। तो क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 है रेनबो रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड विद। रेनबो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, रेनबो रिवॉल्यूशन रिलेटेड है ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। On 28 July 2000 the new national agricultural policy was announced by the central government. In the new national agricultural policy the concept of rainbow revolution was introduced by central government. The various colors of the rainbow revolution indicate various farm practices such as green revolution for food grains, white revolution for milk production, yellow revolution for oil seeds, blue revolution for fisheries, red revolution for tomato, golden revolution for fruits, grey revolution for the fertilizers and so on. Thus the concept of rainbow revolution is an integrated development of crop cultivation, horticulture, forestry, fishery, poultry, animal husbandry and food processing industry. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए का है 1,
ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, तो यह है क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये मैच हो जाएगा, ए का 1। नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए है वाइट रिवॉल्यूशन, तो बी का हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फिशरीज़। फिशरीज़ के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन है, फिशरीज़ के लिए है ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, सी का 2। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ग्रे रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, तो ये तो फर्स्ट का, ए का फर्स्ट हो जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ फॉर ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन, किसके लिए है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए है वाइट रिवॉल्यूशन, बी का 3। नेक्स्ट है सी फिशरीज़। फिशरीज़ के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन है, सी का 2। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स के लिए हो जाएगा ग्रे रिवॉल्यूशन। ठीक है, डी का 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन इज रिलेटेड विद वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या है, वाइट रिवॉल्यूशन है। फिशरीज इज रिलेटेड विद ब्लू रिवॉल्यूशन, फर्टिलाइजर्स रिलेटेड विद ग्रे रिवॉल्यूशन। द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन इज एज फॉलोज। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पोल्ट्री से। और राउंड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो से। पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ प्रॉन और ओनियन से। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर से। रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ मीट और टोमेटो से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिशरीज से। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से। और गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स और पोल्ट्री से। राउंड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो से। पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ प्रॉन और ओनियन से। नेक्स्ट है ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ग्रे रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ मीट और टोमेटो से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है पिंक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। पिंक रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, पिंक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ऑनियन और द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉन। ठीक है, पिंक जो क्या है, पिंक रिवॉल्यूशन है किससे एसोसिएटेड है, ऑनियन से है। ठीक है, पिंक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ऑनियन। अदर इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस आर ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम से। रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, टोमेटो एंड मीट से। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिशरी से। येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ऑयल सीड से। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द ब्लैक रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, अभी हमने पढ़ा कि जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, और क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच नहीं है उसको बताना है। सबसे पहले रिवॉल्यूशन है और रिलेटेड टू, क्या गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर से है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए होता है, बिल्कुल सही है। ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है, फिशरीज़ के लिए होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ब्लू रिवॉल्यूशन यहाँ पोल्ट्री दिया गया है जो कि गलत है, और ब्लू का क्या होगा, फिशरीज़ होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ठीक है। The blue revolution refers to the remarkable emergence of aquaculture. The blue revolution refers to the remarkable emergence of aquaculture. Aquaculture refers to all forms of active culturing of aquatic animal, plants and fishes. It is not related to poultry. Blue revolution is not related to poultry. Thus, it is not correctly matched. All other options are correctly matched. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ब्लू रिवॉल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिशिंग से, फिशरीज से, ठीक है।
ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशरीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन से कौन रिलेटेड है? फिशरीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, among the following which one is related to the blue revolution in India। ब्लू रिवॉल्यूशन से कौन रिलेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा विच वन इज़ रिलेटेड टू द रिवॉल्यूशन ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसका आंसर है पिसिकल्चर। ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू पिसिकल्चर। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है इंडिया में वो किससे रिलेटेड है? पिसिकल्चर से रिलेटेड है। पिसिकल्चर इन्वॉल्व्स रेजिंग फिश कॉमर्शियली इन enclosures or tank. The breeding, rearing and transplantation of fish by artificial means are called pisciculture. India's blue revolution focused on fish production. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ रिलेटेड टू द ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसका आंसर है pisciculture. Blue revolution in India is related to pisciculture. Pisciculture involves raising fish commercially in enclosures or tank. The breeding, rearing and transplantation of fish by artificial means are called pisciculture. Pisciculture क्या है? The breeding, rearing and transplantation of fish by artificial means are called pisciculture. India's blue revolution focused on fish production. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ब्लू रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्लू रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ज़ीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल वॉज डेवलप्ड एट। इसको हमने पढ़ा था कि इसे बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर के द्वारा। ठीक है, ज़ीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल वॉज डेवलप्ड एट गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। ज़ीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल वॉज डेवलप्ड बाय गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी Pantnagar. This machine enables to show directly after paddy harvest without prior seedbed preparation. This saves the diesel tractor's working time, labor, and most importantly, it gives higher yield. Zero till seed cum fertilizer drill was developed by Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology Pantnagar. This machine enables to sow directly after paddy harvest without prior seedbed preparation. This saves the diesel tractor's working time, labor, and most importantly it gives higher yield. Next है क्वेश्चन नंबर 28, Which one of the following is not correctly matched with regard to the revolution in agriculture? इसमें बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। वाइट रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मिल्क, बिल्कुल सही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये भी सही है। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, ये भी सही है। ब्लू रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फिशरीज़, ठीक है, जबकि यहाँ पे पोल्ट्री दिया है इसीलिए ऑप्शन डी गलत होगा। ब्लू रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? फिशरीज़, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फिशरीज़ नॉट पोल्ट्री, दस ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमर्शियल क्रॉप। इसमें से बताना है कि कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है। शुगर केन इज़ ए कॉमर्शियल क्रॉप। कॉटन इज़ ए कॉमर्शियल क्रॉप। बनाना ये भी क्या है? कॉमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। बाजरा इज़ नॉट ए कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक है। अमंग द गिवन क्रॉप्स मिलेट इज़ नॉट ए कॉमर्शियल क्रॉप, whereas sugarcane, cotton and banana come under the category of commercial crops and are also called cash crops. But it should be remembered that the level of commercialization of agriculture is different in different states. For example, in Haryana and Punjab, rice is a commercial crop, but in Odisha, राइस इज़ ए सबसिस्टेंस क्रॉप, ठीक है। तो ऐसा क्या है, स्टेट टू स्टेट डिफ़र भी कर सकता है। ये MPPCS में क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमर्शियल क्रॉप। तो मध्य प्रदेश में जो बाजरा है वो क्या है? एक कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है, ठीक है।
among the given crops, millet is not a commercial crop, whereas sugarcane, cotton and banana come under the category of commercial crop and are also called cash crops. But it should be remembered that the level of commercialization of agriculture is different in different states. For example, in Haryana and Punjab, rice is a commercial crop, but in उड़ीसा राइस इज़ ए सबसिस्टेंस क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में फूड क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।